इफ यू आर लुकिंग फॉर करियर पिवोट्स देन दिस पॉडकास्ट इज फॉर यू। इस पॉडकास्ट से आपको आगे के लिए गाइडिंग लाइट मिल जाएगी। आज के जो हमारे गेस्ट हैं जयेश सर मेरे साथ। सो सर हैज वर्कड इन इंजीनियरिंग industry for like 2 decades, more than 2 decades, I can say. And now he has transitioned to what he can say, like he has found his ikigai, or where he can do some more impactful work, meaningful work, and the work he loves to do and enjoy as well. So, without further ado, I would like to invite Jayesh sir. Welcome, Jayesh sir. Welcome to this podcast, and thanks for accepting the invitation. And आपने time निकाला अपना इस session के लिए. Thank you so much, sir. Over to you. First of all, sir, introduce yourself to our viewers, and then we'll take it forward. Shubha Deepavali to all of you. We are recording this on an auspicious day. Thanks for getting me on the podcast. I think brief about me, I would say I started my career back in mid-90s and I was drawn towards engineering. I picked it up as a field and I excelled in that. December 20s when I called it a quits as a chief engineer for procurement, working with a multinational engineering consulting firm. So I transitioned from being a person in the engineering design towards being a project manager. And that was quite a journey. And that's it. But I think, as you rightly said, the ikigai part of it, I was also not consciously looking at it. But somewhere along the line, I pivoted in mid 2010, 2015. I started to understand more about finance and developed my liking towards it. And at the same time, I understood the various instruments which are available to us. And then I excelled myself towards learning more towards it. And 2017 is when I launched a sort of a side hustle, as people call it nowadays, and which actually helped me transition into full time in January of 21, post COVID. I think where most of the careers were recalibrated, I would say. So that's been my journey so far. ग्रेट सर। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज लाइक आपने जो इंजीनियरिंग का डोमेन चूज किया था वो अपनी लाइकिंग से या फिर सारे फ्रेंड्स कर रहे थे इसलिए इंजीनियरिंग कर लिया था बेसिकली। Okay. Uh, First of all, to be honest, as you can connect the dot backwards, right? वो Steve Jobs कहते हैं 2005 के transition राइट। speech में. But somewhere along the line, I was drawn towards it. I would say 51% I was drawn towards it, and 49 was unconscious. And yeah, that's about it. I entered into that field, and somewhere along the line, you find your passion, you find your likings, you find your inclination, how you understand yourself better, राइट and सर। that's how, yeah. राइट सर, मतलब एज आई नो दैट यू लर्न अ लॉट, यू डेडिकेट सम पोर्शन ऑफ दैट ऑफ योर अर्निंग एज वेल फॉर लर्निंग। सो थोड़ा सा उस पार्ट के बारे में बताइए, बड़ा फैसिनेटिंग लगता है मुझे तो। आप भी बताइए एक बार सर। Yes, somewhere along the line we discussed sometimes when we met in Bombay. I allocate 5% of my earnings towards self-learning. Now, 5% just because उतना तो खुद पे खर्चा कर सकते हैं, करना चाहिए. But if I look at the other way around, uh, there is a limit to which I could rent out my time, and earn. I can spend 8 hours if I'm a junior guy. But the more I grow up the hierarchy, I should be able to leverage my knowledge, my experience better. I can only do that if I am upskilling myself. I mean, if I remain the same person, I may not be adding any more value other than being more efficient at my work. Correct. You'll राइट। take, say, around 2, 3 months to understand the work that you're doing and be more efficient at it. But there is a limit to it, right? You cannot exceed beyond the human capacities. Now, you can only do so if you have a team below you or if you're leveraging your knowledge to do a larger impact. So, for that to be, I have to upskill myself, and that requires you to gather knowledge. And a very good analogy that I had read somewhere, when you're acquiring knowledge, become like a sponge. आप स्पॉन्ज का प्रॉपर्टी देखोगे ना, जितना पानी डालोगे सब सोख लेगा. ओके. एंड व्हेन यू आर टेकिंग क्रिटिसिज्म, बी लाइक अ सरफेस ऑफ ग्लास. आप उस पे पानी डालो, जितना गीला होना गीला होगा, बाकी पानी को छोड़ देगा. So if I'm being criticized by someone, I'll take the lesson. I won't be revengeful against the person. I'll take the lesson and keep the rest away. I mean, if I have to upskill myself and go to the next level, it is important. राइट सर।
great analogy of sponge and surface of glass. So मतलब one question I have online that a person who worked in the industry for 4-5 years, कुछ लोगों को जल्दी एनालाइज रियलाइज हो जाता है कि यार एक्चुअल में शायद मैं इसके लिए नहीं बना हूं, अब मैं रॉन्ग पाथ पे आ गया हूँ, या फिर अभी मुझे इस जैसे किसी इंडस्ट्री में हूँ तो मुझे इस पर्टिकुलर काम में मजा नहीं आ रहा है। हाउ कैन अ पर्सन शिफ्ट टू द वर्क दैट ही लाइक्स मोर? तो सर उसके लिए आपके 2 डिकेड्स के एक्सपीरियंस से क्या लर्निंग है उस पर्सन के लिए? I would relate this to the stock market. As a श्योर सर। trader, if you take an entry to a stock, okay, now you and I both understand as industry professionals that we have to follow the price. We have to follow the market. As we all say, it's very cliche, bhav bhagwan che. You follow the price. To explain it to others, I would say price is pristine. That's the leading indicator. But if the price goes against me, I know I should be cutting my stop loss. After 2 years, if you realize that activity that you are currently engaged in is something which is not getting the best of your as a professional, अपने को ना एक because most of it like cricket है या stock market है या गाड़ियां है, consider yourself to be a Mercedes, okay? और ये Mercedes को आप सबसे अच्छा यूज कहाँ कर पाओगे? छोटी गलियों में या हाईवे पे या बड़े से so if you're a Mercedes, you will definitely not like to be treated as a Maruti. Nothing against any of these brands. Maruti से भी घटिया है और Mercedes से भी अच्छी है. But these are just two analogies. So if you at after 2 years, if you realize that I'm not being used as a Mercedes, मतलब मेरा काम नहीं हो रहा है. राइट। Either you change the owner, which means you change your job, or you change the person who drives you, which means you change your department. राइट। अभी आप फाइनेंस में हो, मोस्टली आपके सब व्यूअर्स फाइनेंस के होंगे. कोई सेल्स में है पर उसको पैशन नहीं है सेल्स में, वो हर रोज कॉल करो रिजेक्शन ले लो, इट इज इम्पैक्टिंग फॉर हिम. इट कुड बी इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट जॉब इज मच मोर बेटर or vice versa, या। then you can always request internally because even your manager they doesn't don't want you to fail, they want you to win. So ये resource है, make use of my in some other department, allow me this opportunity, work as an intern. I mean, that's what I have done so in my engineering field and even in my wealth management field. राइट सर। I hope this answers. Yeah. यस यस। तो आपने एक लाइन बोली बहुत अच्छी है, मतलब लाइक मैनेजर्स डोंट वांट यू टू फेल, मतलब जो आपकी लीडिंग अथॉरिटी है, जो भी जिसके अंडर में भी आप काम करो, दे ऑल वांट यू टू सक्सीड, कि आप अच्छा करो, टीम अच्छा करे, कंपनी अच्छा करे। दैट्स अ क्वाइट लाइक माइंडसेट शिफ्ट, कि जब आप ये सोचते हो ना कि जो सामने वाला पर्सन है वो ये नहीं चाहता कि मैं पीछे रह जाऊँ, वो खुद चाहता है कि ये आगे करे, अच्छा करे, मेरी टीम का पर्सन। तो ये मतलब ग्रेट पॉइंट, इट्स अ ग्रेट पॉइंट सर। मतलब अभी जैसे हमारी कम्युनिटी में हम लोग बात करते हैं लोगों से, देर आर सो मेनी पीपल हु आर नॉट लाइक, there are so many factors which hinders people from taking these kind of plunge. There are some people say I have responsibility, some people say I have fears, some people say I have other things. How can I navigate all these things? Because आप सर मतलब सारा मतलब वो ये कि मार्केट में आने से पहले रिस्क लगता है ना, कलेजा लगता है। आप सब कुछ ले आओगे, पैसा भी ले आओगे, कलेजा नहीं लाए तो फिर कहाँ से लाओगे? तो सर हाउ टू बिल्ड दैट काइंड ऑफ माइंडसेट कि आपको पता है आप मर्सिडीज हो, तब भी आप गलियों में क्यों घूम रहे हो, इज लाइक अगर आप वो एनालॉजी से समझो तो आप इस माइंडसेट को लाने के लिए क्या कर सकते हैं? Uh, I go with the simple belief. जब एक नया बच्चा जन्म लेता है, there are only two fears that they have: the fear of sound and the fear of falling from heights. कैन यू Okay? प्लीज रिपीट सर? आई कुडंट गॉट अगेन। जब जब एक नया शिशु अ, या। या। दुनिया में आता है, तो there is only two fears that they have: the fear of falling down from a height and the fear of sound. ओके। आप देखोगे तो छोटे बच्चों को हम अगर कोई फटाका लग रहा है तो हम उसका कान ढक देंगे ताकि वो डर ना जाए. तो राइट। fear of falling from height and fear of sound. Every other fear is conditioned. Every other fear is either given to you by a well-meaning parent or a teacher or a friend or a senior or anybody. ये सारे बनाए हुए अपने फियर्स है, ये मुझे लगता है. राइट सर। और उसका एक एनालॉजी आप देखोगे तो देयर इज अ sort of a world record holder called David Goggins, ओके। and he has a book called Can't Hurt Me. कांट हर्ट मी। या। Now, if you look at his brief journey, अगर आप बुक पढ़ोगे तो भी अच्छा है. He was a 300 pound beast.
And somebody, and he was like going nowhere in his life. मतलब पता नहीं क्या ही कर रहा है. He was like, कुछ is good for nothing. That was his mindset. And then somebody challenged him somewhere he felt that I should be. So he entered into the 100-mile race, which is like 24-hour race, which was happening. And he listed himself. And by the time he had just one attitude कि मेरे को पूरा करना है रेस, फिर चाहे कुछ भी हो जाए. तो विद जस्ट अ शॉर्ट एंड वेरी फ्यू रिसोर्सेस, मतलब पब्लिक उधर क्या करती है कि दे लाइक टेक अप देयर कैरावन्स एंड पूरा ना मस्ती करते करते दे पार्टिसिपेट. बट दिस गाय वाज सीरियस. बाय द टाइम ही कंप्लीटेड, बिकॉज ऑफ द वेट दैट ही इज 300 पाउंड्स, उसकी इस शरीर की कितनी हड्डियां टूट गई उसको पता नहीं, बट ही कंप्लीटेड द रेस. समवेयर ही फाउंड हिमसेल्फ. देन ही लिस्टेड हिमसेल्फ फॉर द आर्मी ट्रेनिंग. ही इज अ trained Navy SEAL. Today, he holds the highest record for push-ups, planks, or multiple things. I mean, he has taken himself to the limit, extreme limit. Now, at some stage in his career, this is a part in the book, he realizes that there was a genetic condition in his body that he cannot do all these things. अगर उसको पता होता तो वो शायद अटेम्प्ट ही नहीं करता out of fear. But he never knew that. He attempted everything. I mean, he is the most, I would say, extreme kind of a, athlete. आप उसको सर्च करो, उसके पॉडकास्ट देखो या उसकी किताब देखो, उसके वीडियोस देखो. You can you can figure out what I'm trying to say. राइट सर. So the fears and everything which is holding you back is limiting. Like as you said, ये मेरी responsibility है, ये फला है, ढिमका है. Everything is there. Everybody has 24 hours, right? If your why is clear, the how becomes easier. राइट सर. आपने सर ये बुक बोली ना, काफी जगह मतलब मैंने देखा है इसको रखे हुए, मिलिट्री की ड्रेस पहना हुआ बंदा सा खड़ा रहता है वाइट में. Correct, काफी जगह, correct, बट correct. सुना आपसे अभी. तो सर चलिए, अभी हमने समझा अर्ली करियर के बारे में. अभी हम मिड में आते हैं, ट्रांजिशन में. कि जब किसी बंदे को पता चल गया, आपने जैसे आपने भी इस फेस को निकाला, ये देखा ही है. तो आपने मतलब एक जैसे मैंने भी जब अपना स्विच किया था फर्स्ट, तो मेरे को भी था कि पहले से प्लानिंग करना स्टार्ट कर दी थी. कि काफी टाइम पहले से सेविंग करना स्टार्ट कर दी थी. इमोशनल सपोर्ट बिल्ड करना स्टार्ट किया कि मुझे चेंज करना है, मुझे यहाँ पे कुछ और करना है. तो सर व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स वन नीड टू प्रिपेयर बिफोर टेकिंग द प्लंज, और सम मतलब कुछ, जैसे आप रिस्की स्टेप लेना, कुछ कुछ भी कर रहे हो जो ट्रेडिशनल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग रिस्की है, जैसे जब आपने दिसंबर 2020 के अराउंड आपने December स्विच 20. किया. यस. सो सर उसके पहले आपकी क्या प्रिपरेशंस थी कि मैं कहाँ कहाँ जा रहा हूँ, अननोन पाथ है, मतलब एक अननोन टेरिटरी है, अनचार्टेड टेरिटरी है. तो मुझे कैसे ट्रांजिशन करना है, क्या करना है, आपके क्या प्लान्स थे, क्या माइंडसेट था उस टाइम? So, a couple of pointers to this. I think luck plays a major role. So, there is a divine intervention, as you can call it. I believe in that. Second is because we are practical, because we are having families, we have responsibilities. One has to be conscious that I have a certain amount uh, available with me in terms of my emergency fund. So that if any situation goes against, I have some cushion to fall back on. Third Okay. is the support from your close family members. I still recall while I was still in job, I had an opportunity to go abroad. My eldest son was around 9 years, and I asked the question on the dinner table with my parents, with my wife, and with my son. Parents was like, ठीक है अपॉर्चुनिटी आ रहा है 1.5-2 साल का आपको अब्रॉड के लिए, पे पैकेज अच्छा है, you can consider. Wife Right. was like, yes, you can. But my child said no. And believe me, I gave the same answer to the same gentleman who offered me the opportunity. I said, no, I don't want to go because my child says he wants to be here. I didn't take that opportunity. Now, some people might say, यार बच्चे के कहने पे ले लिया आपने. But now, in 2025, I realized this opportunity was in 2018. Had I taken the 2-year opportunity, I might have made a good gains. I never knew that 2020 was going to come. Okay. And I never knew that I'm going to make a switch over in a big way into wealth management. It was a side hustle even then, 2018, side hustle. Right. So I had like my brother to take care of it at that point of time. अगर मैं जाता तो, पर अगर मैं जा करके वापस आता या कहीं अटक जाता, I do not know what could have been the consequences. Right. आने के बाद में इंडस्ट्री में एक्सेप्टेंस होगा कि नहीं होगा, सैलरीज मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, आपको पोजीशन मिलेगी या आपको कहीं लंबा भेजेंगे.
ये राइट। सारे क्वेश्चन मार्क थे, बट एक डिसीजन के मुझे नहीं जाना है. आई स्टेड बैक इन द सेम कंपनी वेयर आई वाज माय लास्ट जॉब. So these things matter before you take a plunge and before you take any major thing. Yes, you have do not have to be planning it to the T, but broadly आपका outlines match होना चाहिए. And एक belief होना चाहिए कि if the God, if you walk out in the garden, in your close by garden, कहाँ भी होगा, आप दुनिया में कहीं भी हो, and you pick up 10 leaf, either from the tree or from the ground, 10 के 10 अलग होंगे. राइट। अगर वो यूनिक है, आप भी यूनिक हो, and your calling in this world is unique. If you have the right mindset, I think you should not have any trouble earning your bread with the grace of God. राइट। या मतलब सर आपने जो बिलीफ माइंडसेट वाला बात बोलना कि अगर आपको अपने ऊपर ट्रस्ट है कि हाँ कर लूंगा, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा, टेंशन की प्रॉब्लम नहीं है कुछ भी, तो आप रिस्क ले सकते हो। और कहीं ना कहीं लोग, मतलब सर इसमें मतलब एक चीज मैंने नोट की है ना, जैसे कहीं ना कहीं अगर मतलब मेरे सामने मेरे एग्जाम्पल है, जैसे मेरे को ना पहले एक दो सक्सेस थी लाइफ में, जब मैं चेंज करने वाला था ना, तो मेरे को एक दो सक्सेस थी कि हाँ मैंने थोड़ा एग्जाम वगैरह क्वालिफाई किया था, फिर मैंने सीएफए वगैरह, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है इन सब चीज़ों से ना। जब आपको पता है कि आपने एक बार थोड़ी सी चीज़ें जो जनरल स्टैंडर्ड से थोड़ी सी हाई है, तो आप उनको कर लेते हो, आपको अपने वो कॉन्फिडेंस आता है। बट जिन लोगों के पास ये चीजें पीछे रिफ्लेक्ट करने को नहीं होती ना, जब वो लोग थोड़ा ज्यादा ट्रैवल में आ जाते हैं कि मैं कैसे किस बिलीफ पे जाऊं आगे। मेन कॉन्सेप्ट होता है सारा बिलीफ का। तो जिन लोगों के पास कुछ कुछ पीछे देखने को नहीं है कि यार मैंने ये अच्छा किया, ये बड़ा किया है, तो वो लोग क्या करेंगे, मतलब जिसके ऊपर कॉन्फिडेंस है, जिसको कॉन्फिडेंस है वो तो कर ही जाएगा। बट अब जो लोग ज्यादा, जिनके पास ऐसा प्रूफ नहीं है, तो वो लोग क्या करेंगे? इसके लिए आपके पास कुछ ना कुछ तो होगा, मुझे पता है, बताइए सर। See, your confidence comes from your preparation, ओके। and growth is beyond the comfort zone. ये दो चीजें आप अगर combine करें, as you said, you were into semi-government and then you went to private. Earlier in the discussion, you mentioned that. और अगर आप सेमी गवर्नमेंट में रहते हो, आपका ग्रोथ होते रहता है. मतलब यू आर लाइक वन अमंग द 50 पीपल ऑन द बस एंड एवरीबडी इज ग्रोइंग इन द सेम डायरेक्शन. ठीक है. अगर आप प्राइवेट में आते हो, कॉम्पिटेटिव में आता है, तो देयर इज अ बिट ऑफ, अगेन यू विल हैव टू अप द मार्क. कंफर्ट में रहते हो, नॉर्मल ग्रोथ होता है. डिस्कंफर्ट में आते हो, थोड़ा ग्रोथ आता है. एंड एट द सेम टाइम, इफ यू look back and if you prepare yourself, because this is something I picked up from the book by Kobe Bryant, Mamba Mentality. ओके। So Kobe Bryant, I think we lost him in an accident, in a plane crash, but he's a very unique player. So he used to like outwork everybody else. मतलब वो और माइकल जॉर्डन सारे एक ही कैटेगरी में आते हैं, लाइक पीक परफॉर्मर्स. अगर कोई बंदा 6 बजे उठ के प्रैक्टिस करता है, ये 4 बजे उठ करके प्रैक्टिस कर चुका होता है, उसका दूसरा राउंड शुरू होता है 8 बजे. ये उसने एक अपना ट्रेनिंग रेजिमेंट कहा था कि बाय इन 2 years टाइम यू हैव आउटवर्क एवरीबडी एल्स ऑन द फील्ड. So confidence in your ability, in you as a person, as a professional, comes from preparedness. If you have not done your homework, boss, पढ़ के तो पढ़ना है. तो स्कूल चाहे हो या लाइफ हो. राइट सर। ग्रेट थोड़ा सर। डिस्कम्फर्ट लेना समझा। पड़ेगा, थोड़ा प्रिपरेशन करना पड़ेगा. राइट, मतलब अगर आप तैयार कर रहे हो कुछ ना कुछ, जैसे आप ही ने बोला कि यू आर लर्निंग कॉन्स्टेंटली ना, इवन एट दिस एज, मतलब आपने इतना करियर निकाल लिया, उसके बाद आप अपना एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी में हो, एंड यू आर स्टिल लर्निंग एवरी डे। और वॉरेन बफेट, चार्ली मुंगर, दे रीड्स एवरी डे बुक्स, एंड मतलब थाउजेंड्स ऑफ बुक्स एंड हंड्रेड्स ऑफ पेजेस, मतलब पता कितना तो पढ़ चुके हैं। तो लाइक जब आप ये सब चीज़ें छोड़ दोगे, सोचोगे कि आई हैव अराइव, जिस दिन आपने ये सोच लिया ना, यू स्टार्टेड लाइक, मतलब ये बेसिक सा टर्मिनोलॉजी है ही कि जब आप सोच लोगे कि आई हैव अराइव, मैं पहुंच गया हूँ कहीं, और आप ग्रोथ करना, पढ़ना लिखना, आगे बढ़ना बंद कर दोगे, तो कहीं ना कहीं स्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। ग्रेट सर। सर चलिए सर, अभी हम इस सेकंड फेज पे आते हैं कि जब आपने स्विच कर लिया, अब आपको पहले तो ये पता कैसे चला कि मुझे फाइनेंस में जाना है। एक्चुअल में जब मतलब मैं बहुत बहुत टाइम लगा था मुझे क्वेश्चन के आंसर फाइंड आउट करने में इंडिविजुअल लेवल पे कि एक्चुअल में मुझे क्या करना है। तो आपको पता कैसे चला कि जैसे इकिगाई की बात की हमने स्टार्टिंग में, कि आपको फाइनेंस में ही जाना है, या फिर पैसा ज्यादा था, क्या मोटिवेशन था, मतलब मुझे वो समझनी है माइंडसेट। When work becomes play, I think you don't need it as anything else. मतलब आपको काम पसंद आ गया, then it's not actually work for you. It's just like, you are just flowing along. In your flow state, जो कहते हैं ना, in Hindi or Gujarati, it is called as a kaivalya state. ओके। So if that gives you that, and you will realize, मतलब आप कुछ भी करो, even Sachin Tendulkar, the greatest batsman that India has so far. I mean, there are others also. You won't believe that he went to Chennai in the MRF Academy कि मुझे फास्ट बॉलर बनना है.
वो तो वहां पे उस समय रिचर्ड हैडली या डेनिस लीरी, दो में से एक थे जो इंस्ट्रक्टर थे, एंड दे पिक्ड अप एंड जस्ट सेड यू आर नॉट मेंट टू बी अ बॉलर, नॉट जस्ट बिकॉज यू आर आपकी हाइट कम है, बट यू आर अ गिफ्टेड बैट्समैन। एंड देन वी नो टुडे कि अगर 15-16 साल का सचिन अगर बॉलिंग सीखने जाता तो व्हाट वुड वी हैव मिस्ड। सो देर इज समबडी यू विल हैव अ लाइकिंग। आज उनके भाई कहते हैं कि वो जब 6 साल 7 साल के थे, खेलते थे, वो खेल के आके थक जाते थे एंड यूज्ड टू स्लीप, खाते भी नहीं थे, बट फॉर हिम इट वाज नॉट, उसको बॉडी थक जाती थी बट उसको पैशन था। सो यू विल फाइंड दैट दैट व्हाट अट्रैक्ट्स यू, पैसा इज अ बाय प्रोडक्ट। अगर पैसे के पीछे देख करके जाओगे तो आई डोंट थिंक यू कैन गो फॉर टू लॉन्ग, राइट सर। is my thinking. There are people who will choose a career based on what the pay package is. Maybe they have their own reasons for that. I don't say कि वो गलत कर रहे हैं, वो अपने हिसाब से सही कर रहे हैं। राइट। मतलब समझा सर, मुझे आपका पॉइंट समझ में आ गया कि लाइक जैसे मतलब मैंने खुद अपनी लाइफ में फील की हैं चीज़ें, तो दैट आई कैन रिलेट इजीली। क्योंकि अभी आपकी जब आप स्टार्टिंग में अपना कुछ भी बिजनेस सेटअप करते हो ना, बिल्ड करते हो, तो आपको बहुत ह्यूज रिवॉर्ड्स नहीं होते, बट स्टिल यू आर शोइंग अप, यू आर डूइंग द वर्क दैट इज नीडेड, देन यू आर समवेयर फ्लोइंग इन द वर्क, यू आर एंजॉइंग द वर्क, यू आर डूइंग ऑल द थिंग्स। सो दैट काइंड ऑफ थिंग आई कैन रिलेट विद दैट। सर अभी जब आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया तो क्या जैसे अभी हमारी कम्युनिटी में लोग हैं तो पूछते हैं कि मुझे अपना इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस स्टार्ट करना है। सर दो ऑप्शन है, जैसे फाइनेंस इंडस्ट्री में क्या होता है, एक तो जॉब जनरल प्रैक्टिस, आपको जाना है कहीं पे अप्लाई करो, वहाँ पे काम करो, एक्सपीरियंस लो। अब कोई बंदा एंटरप्रेन्योर मतलब अगर खुद से स्टार्ट करना चाहता है, अपना जॉब नहीं करना चाहता, तो क्या पाथवेज है और आपने क्या पाथवे चूज किया? I'll tell you, there are two major pathways. I will restrict myself to wealth management because उसमें थोड़ा मुझे पता है, and recent में there are two pathways. When I said one pathway is to genuinely understand the client's need and having a series of products to cater to the client. Today, if a person like Prince का एज ग्रुप का आएगा तो उसका एक डिफरेंट बॉल गेम होगा, पर कोई व्यक्ति अगर 55-60 में आते हैं तो उनके गोल्स रिक्वायरमेंट्स अलग होंगे। क्या प्रिंस को सूट करेगा, क्या कोई 55 के बंदे को सूट करेगा, उसके हिसाब से प्रोडक्ट कैटेगराइज करके उसके गोल को अलाइन करना। तो दैट्स अ डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल। यू आर अ डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूटर या। ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, दैट इज वन, एंड इट इज वेरी लो बैरियर एंट्री। आपको कोई सेटअप नहीं लगता है, यू जस्ट नीड टू हैव एडिक्वेट नॉलेज, यू शुड बी हैविंग the right connect, the right information to cater to the clientele, and that's a very simplistic way. Second, थोड़ा उसमें आपको कॉस्ट लगता है, is you can empanel yourself with SEBI as a research analyst or a research a registered investment advisor. तो ये दो आपको एग्जाम्स क्लियर करने होते हैं, सेबी के जो रूल्स रेगुलेशन गाइडलाइंस है उसको मीट करके यू कैन स्टार्ट योर प्रैक्टिस इनटू एडवाइजरी। Again, knowledge of every product is required, but I think you cannot be a distributor or your family member cannot be a distributor if you're a RIA or a RA. And being an RA, you have the ability to do your research and share your and sell your reports, ओके। research basically. So these are two avenues which a existing professional can look towards. I mean, there could be others. I mean, in technical, in as a visiting faculty, there could be multiple such careers, but then the major one which will move the needle is either distribution or RIA. ओके। सो जैसे डिस्ट्रीब्यूशन का मॉडल स्टार्ट किया, मतलब एक एक जनरल मेरा क्वेश्चन है अपार्ट फ्रॉम दिस, कि सर जैसे कोई डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं अभी, एक डिस्ट्रीब्यूटर है जिसके पास प्लेथोरा ऑफ ऑप्शंस हैं अवेलेबल, कि उसके पास सारे टाइप के मल्टीपल मल्टीपल फंड्स अवेलेबल हैं, सब कुछ है, बट वहीं और एक एएमसी है जिसके कुछ स्पेसिफिक फंड्स हैं। तो आपको क्या लगता है, मतलब ठीक है, योर मतलब अगर मैं आपसे पूछूं जनरली कि इफ यू आर इन दैट बिजनेस, देयर शुड बी सम बायस एज वेल, बट अगर एक एएमसी है तो एएमसी को तो पूरे 12 महीने अपना प्रोडक्ट्स बेचना है ना, तो दे विल गिव कि मेरा फंड अच्छा है पूरा टाइम ना। और अभी मतलब माइंडसेट थोड़ा सा लोगों में ऐसा है कि यार डिस्ट्रीब्यूटर एडवाइजर को अपनी सर्टेन सर्टेन पोर्शन ऑफ फीस लगता है, या 1%, 0.5% लगता है। तो उस माइंडसेट को कैसे क्रैक करेंगे? अगर मैं जनरली जब पीछे बैठ के देखता हूँ तो देखता हूँ कि अगर आप डायरेक्ट जाओगे, चले जाओ डायरेक्ट, तो हर एएमसी अपना फंड बेचेगी, चले जाओ कर लो, ले लो, उनके पास तो एक दो तीन सर्टेन तीन चार फंड होंगे। बट जब आप किसी एक डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू लेते हो, या फिर किसी एक पर्सन जो
प्लेथोरा ऑफ एएमसीज के साथ काम कर रहा है, इसके पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, तो वो आपको बेटर बता सकता है कि हाँ ये एएमसी इस टाइम पे बायस है। और या फिर अगर आप इतने ज़्यादा केपेबल हो, आप इतने ज़्यादा मार्केट को समझते हो ढंग से, या आपका पूरा बॉल गेम ही वही है, तो आप खुद से कर सकते हो। तो सर आप इन तीनों पॉइंट पे आप क्या बोलेंगे मतलब ऑडियंस को? The way I understood your question is that people have an apprehension if they go to a distributor, or your राइट। question is with respect to the distributor having biases. या Your पीपल हैव question? एप्रीहेंशन Okay. एप्रीहेंशन वाला। See, first of all, right fund selection or sticking to one AMC or any such star fund manager is not going to give you return. ओके। Okay. ये थोड़ा कॉन्ट्रेरियन आंसर है, बट ये ठीक है सर। फैक्ट है। ये मैं आपको दो एग्जांपल दूंगा। एक है इंडियन मार्केट का, एक है यूएस मार्केट का। यूएस मार्केट हैज अ मोर रिकॉर्डेड हिस्ट्री, तो उसके पास डेटा पॉइंट्स ज्यादा होते हैं, बट मैं पहले इंडियन की बात करूंगा। अमंग द टॉप लीडिंग एएमसीज इन इंडिया, वन इज डीएसपी एंड वन इज रिलायंस। ये दो नाम क्योंकि उसी के कंटेक्स्ट में मैं एग्जांपल देने वाला। बहुत शुरू की एक स्कीम थी डीएसपी की, कि जिसने अच्छा रिटर्न दिया था, 25 साल पूरे किए थे। तो समवेयर इन द फंड मैनेजमेंट टीम थॉट के यार हमको सेलिब्रेट करना चाहिए, और हमको उस फोलियोज के लोगों को बुलाना चाहिए कि जो लोग इसमें इन्वेस्टेड रहे हैं। फंड ने तो रिटर्न दिया है 21% या 18% जो भी था, पर एक्चुअली इन्वेस्टर ने बनाया कि नहीं बनाया। ओके, क्योंकि 25 साल में अगर फंड ग्रो किया है तो इन्वेस्टर भी तो 25 साल बड़े हुए होंगे। किसने अपना एसआईपी मेंटेन किया है, किसने ग्रो किया है? आउट ऑफ a few 100,000 people having unique folios in that particular scheme, or a million people, less than 100 people were invested for the entire 25 years. So the fund return was 25 years ka superlative, beating the market. But how many investors actually made money? A very fraction of it. Second example, ये अभी रिसेंट में संदीप सिक्का ने एक इंटरव्यू में कहा था कि कोई एक स्कीम थी जिसको 30 साल हो गए थे, 10,000 का SIP has turned to like a few crores and everything. But when they found out less than 2,000 people, was less than 1% of the total folios were invested for the complete 30 years. Now, what does this tell you? It is not the investment scheme, fund, etc. It is the investment own behavior which is working against the investor. Part number one. Second, Vanguard, as you all know, is a global leader in passive investment. पैसिव फंड्स। John Bogle, इवन वॉरेन बफेट अभी कहते हैं कि मेरा जो होगा उसको इंडेक्स फंड में डाल दो, मतलब मेरे बाद में जो आएगा उसके पास शायद वो कैपेबिलिटी ना हो, तो द सेफर मनी इज टू बी इन द इंडेक्स। करेक्ट? ये वॉरेन बफेट ने अभी रिसेंट में कहा था, बिकॉज नाउ ही इज आल्सो सॉर्ट ऑफ पासिंग ऑन द बैटन टू समबडी एल्स। राइट। Vanguard did a study, and it is available on the Vanguard's website, that the people who work with the advisor have a alpha of 1.5 to 2%. Why? It is not the fund, it is not the fund manager, it is the behavioral aspect of the investor, जो advisor या जो distributor होता है वो उनको guide करता है। Second thing, which everybody would not be aware broadly, apart from the people in the industry, जैसे मैंने कहा, the right fund, the fund manager, the AMC, no, the right asset allocation will make the money. If you are sitting into debt, for example, a person of the age of 18, somebody has told him कि FD करो, RD करो, FD करो, RD करो. If they are sitting into debt, those are not going to compound his returns. Those are going to eat away the wealth, because वो तो उसका return तो inflation से भी कम होगा. You need a longer pathway. You need something which compounds faster than the inflation rate. तभी आप जा करके अल्फा क्रिएट करो। इन्फ्लेशन प्लस जीडीपी, जो नॉमिनल जीडीपी, उसके ऊपर अगर बनाना है रिटर्न्स, तो ए यू हैव टू बी इन द राइट एसेट एलोकेशन, डेट, इक्विटी, that will help you compound. Second is you're switching at the right time. You might think कि ये डिस्ट्रीब्यूटर ने हमको यहाँ से स्विच करके वहां क्यों डाला है, बट यू डोंट अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड इट, कि अगर स्मॉल कैप मिड कैप अच्छा रन अप कर चुके हैं तो उसको रीबैलेंस करने के लिए मुझे तो उसको सिर्फ 25% ही रखना है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम नॉट सजेस्टिंग कि यू शुड हैव 25 और 30 वॉट,
पर अगर उसको सिस्टमेटिकली स्विच करना है टुवर्ड्स सम अदर एसेट क्लास, इट कुड बी लार्ज कैप, इट कुड बी गोल्ड, इट कुड बी REITs, whatever. Looking at what the investor needs, at our firm, we never give you any NFO. In the last probably 100 months, barely I would have suggested a NFO to anyone. And believe me, I don't regret that. There was a large company, इन्होंने अभी रिसेंट में एक एनालिस्ट मीट में कहा था, अगर एग्जिस्टिंग AMC कम कर रही है तो हम नए AMC के प्रोडक्ट बेचेंगे, वो हमको ज्यादा कमीशन ऑफर कर रही है. Now, if somebody in an analyst meet can go on a record, you can imagine what could be happening. They are also distributors. That's okay, but that was a very conscious statement by the person who was attending the analyst from the management side. So, right fund management, no. AMC, no. It is the asset allocation, and it is the behavioral part which will make you money. राइट सर. बट सर इसमें एक जब डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू काम करते हो तो एक बायस तो आ ही जाता है सर. अगर कोई AMC को कम कम डिस्ट्रीब्यूशन को कमीशन दे रही है तो वाई ही वुड सजेस्ट दैट फंड ना, बिकॉज एट लास्ट उसको भी तो अपनी अर्निंग चलानी है ना सर. मतलब ये वॉरेन बफेट का है ना. मतलब वॉरेन बफेट बोलते थे कि इंटरेस्ट, सेल्फ इंटरेस्ट, मतलब आप अगर इंटरेस्ट देख पाओ ना उस बंदे का क्या इंटरेस्ट है तो आप समझ सकते हो कि वो बंदा कैसे बिहेव करेगा. तो सर कहीं ना कहीं ये मैंने भी एक्सपीरियंस किया ही है और देखा ही है लोगों में कि जैसे अगर अभी हम डिस्ट्रीब्यूटर्स की बात कर रहे हैं तो डिस्ट्रीब्यूटर्स के क्या होता है कि AMC सर्विस दे रही है, कुछ कुछ AMC अच्छी सर्विस दे रही है, कुछ AMC अच्छी नहीं दे रही. तो वो लोग भले ही उनके फंड्स कितने भी अच्छे हो लेकिन वो लोग करेंगे कि यार इनसे बहुत हेजल आता है तो इसे इसे हटाओ, तो किसी और का करेंगे जिससे थोड़ा हेजल फ्री काम हो जाए. सर मतलब ये बायस तो सब जगह होता है. मतलब हम किसी को ऐसे वो ऐसे पिन पॉइंट नहीं कर सकते इसमें. You can say that. That could be the case with majority, but there are a few who maintain a certain principles. Like, Right. see, if I have to, even for you to trust me, okay, you need to first understand okay, what are the values of the person. जैसे वो कहते हैं ना कि if you are nice to the person but not nice to the waiter, you're not a good person. So if I have to deal with someone and if I do not have the trust comes from the values and ethics that you present. What Right. do I personally do? If I'm allowed to share, I sent out a small charter. This is what I do. This is what I don't do. This is why I do. This is what I do. बंदे को पढ़ लेता हूँ एक दो दिन के बाद में. Then we come for a meeting. Right. A level above, I met a distributor. He simply says, अगर कोई अपना शॉप पे आता है ना, उसको मैं बोलता हूँ ये मेरा बुक खरीद लो 149 का. मैंने सारा कुछ जो है ना उसके साथ में 2 घंटा बिल उसको 149 का बुक बेच दिया. ये बुक पढ़ो, उसके क्वेश्चन आंसर है, उसके देने के बाद में मेरे पास आओ. तो बंदा जब आता है ना तो ही कम्स एजुकेटेड. He has very less questions about what we do, why we do. So I made a small charter which I share it with people so that they can go through that, understand my viewpoint, my offering, my approach, and then if it aligns with their interest, we proceed. Never and always. You might say that bias. I don't deal with AMCs, frankly speaking. I only tell me send me the data. I look at the data. If it fulfills the guidelines, I may recommend. Generally, I do not. I mean, every AMC which speaks to us, they know this. गॉट द पॉइंट सर. मतलब अल्टीमेटली ट्रस्ट ट्रस्ट का गेम है सारा. बंदा आप पे ट्रस्ट करता है तो ही पैसा देगा और पैसा देगा तो ही पूरी बात आगे जाएगी. गॉट द पॉइंट सर. सर अभी आपने करियर से स्विच कर लिया, स्टार्ट कर लिया, अपना बिजनेस भी सेटअप हो चुका है, क्लाइंट्स भी बन गए हैं, एडवाइस भी कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं. सर चैलेंज क्या होते हैं अपना बिजनेस करने के? सबसे ज़्यादा चैलेंजेस क्या क्या फेस करने पड़ते हैं आपको जो लगा कि मेरे टॉप 5 चैलेंजेस थे? वो चैलेंजेस पे बात करेंगे हम, क्योंकि सर ये इतना आसान रास्ता भी नहीं है जो हर कोई, केक वॉक नहीं है मतलब, सिंपल सा ना. तो आपका क्या एक एक्सपीरियंस? चैलेंज तो उतना ही होता है कि आई समटाइम्स रिग्रेट कि मेरे पास सिर्फ 24 घंटे होते हैं. ओके. दैट इज वन चैलेंज. ओके. And no, frankly speaking, I feel challenges when I have to uh, create a report for which I am working on the format because I deal in multi assets, right? और मल्टी एसेट के रिटर्न्स आपको दिखाने होते हैं. माय फोकस ऑलवेज स्टेज टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग द क्लाइंट्स नीड एंड मिनिमाइजिंग द रिस्क, you know. So when I say minimizing the risk, I have to switch the products accordingly, and sometimes it's difficult for the client to understand the point of view कि ये ऐसे स्विच क्यों किया, ये आपने हेज क्यों किया, ये सजेस्ट क्यों किया आपने, ये क्यों ऐड किया. So that is one challenge I feel that in terms of presentation. But broadly, the macro framework of
allocating is easy. The challenge I face is more into reporting. Second, as I said, is time. These are the two major things, I believe. And yeah, if somebody is क्लियर listening मतलब and they have a या they have a framework to present a report in a lucid manner, I'll be happy to interact. राइट मतलब क्लियर कम्युनिकेशन हाउ यू कम्युनिकेट व्हाट इज इन योर माइंड टू द क्लाइंट्स की सच्चे नहीं, समझ जाए. कम्युनिकेशन तो एक चीज होता है, दैट इज नेवर एन इशू. आई मीन, आई जनरली रिकॉर्ड अ स्मॉल वीडियो एंड शेयर विद द क्लाइंट ऑन व्हाट्सएप, सो दैट दे गेट द कंटेक्स्ट. भले वो 1.5 मिनट का वीडियो है, पर उसमें उसको सारा कंटेक्स्ट मिल जाता है, फिर वो नीचे डॉक्यूमेंट देख लेता है. पर जब प्रेजेंटेशन की बात आती है इन टर्म्स ऑफ रिपोर्टिंग द नंबर्स across different asset classes, across different timelines, is where I feel I'm not able to get the right vendor who can, give me this kind of. I've spoken to few vendors, but they are not coming up to the mark. I mean, जहां तक बेसिक प्रोडक्ट्स है, सिंपल म्यूचुअल फंड ये वो तो ठीक है, बट when it comes to a bit of a complex things, I find that I am not able to deliver it properly, so I have to work on and create a format for that. चल रहा है उस पे Got काम. got the point. Maybe we can connect you with a person inside community like he's working CFA knowledge Okay. है market का और you can work out कि कैसे एक report template बना सकते हैं so that clients can understand in a better way. Got the point, sir. सर एक मतलब हमारी community का एक member है निखिल, मतलब he most of the time says कि I have to start my mutual fund distribution setup ना business. So starting में client कहाँ से source करता है कोई भी person? जनरली मतलब जो मेरा थॉट है फैमिली फ्रेंड्स, आप पे जो लोग ट्रस्ट करते हैं वही लोग आते हैं स्टार्टिंग में. तो फिर आगे ग्रो कैसे करते हैं? क्योंकि एक इसका कनेक्टेड क्वेश्चन एक और है कि क्योंकि ये जो कमीशंस है लाइक 0.5 to 1% ही होते हैं, तो बियॉन्ड मतलब बिफोर अ सर्टेन स्केल यू वोंट सी मच मनी फ्लोइंग टू यू. सो क्या उसको टैकल करने के लिए स्टार्टिंग में क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए? एज यू राइटली सेड, आपके इनिशियल क्लाइंटेल तो आपके क्लोज सर्कल से ही आएंगे, ये like friends, relatives, people who you have worked with, people who are your classmates, people where you meet them on a irregular basis. Those are the kind of things. आपके जो local chapters है in terms of industry body है, या you can go and approach a bank branch and where you can guide people, provided the bank allows you. You can go and talk to the shopkeepers and take a small SIP for them to build a wealth. Most important, आपको कोई पैसा तब देगा जब आप उसको एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करोगे. सॉल्यूशन इन द सेंस कि सर, 3 साल के बाद में अगर आपको ये चीजें करनी है तो आपको ये कॉस्ट लगेगा, इन्फ्लेशन के एडजस्ट करके आपको कम से कम 20 लाख की राशि जमा करनी पड़ेगी. उसके लिए आपको आज इतने की SIP करनी पड़ेगी. द मोमेंट यू पैकेज योर ऑफरिंग along with a solution and think that it makes sense. सेल्स के बाकी तो क्या कहते हैं उसके हैक्स आपको AMC सिखा देगी. ओके, बट टू पैकेज द होल थिंग इन अ वे वेयर इट, अगर आप में आपकी, सपोज यूर अ शॉपकीपर एंड प्रोबेबली यू हैव एक्वायर्ड अ न्यू शॉप, या आपको एक्वायर करनी है, ये वुड से कि सर आपको इतना तो डाउन पेमेंट देना ही पड़ेगा, तो उसके लिए 20 लाख जमा करना पड़ेगा. अब कल की कल तो मिलने वाला नहीं है अनलेस आपको बैंक की लोन मिलेगी, पर बैंक के भी आपको सर्विस करना पड़ेगा. आपको लोन रीपे करना है तो एक छोटा सा SIP कर लीजिए. आपकी होम लोन चल रही है, आप यू अलाइन योर 15 ईयर का 20 ईयर का होम लोन अलॉन्ग विद अ स्मॉल SIP, ताकि आपकी होम की लोन आप जल्दी रीपे कर पाओ. सो दीज आर द फ्यू थिंग्स वेर यू कैन अलाइन अ सॉल्यूशन फॉर फ्री. क्योंकि आजकल तो क्या है ना कि practically every platform will give you a small calculator, and if you know your basics in terms of financial planning, you can always do a back calculation कि अगर मेरे को returns X percentage पे है and ये मेरा time period है, तो how much should be SIP number. So you should be able to do that and provide. आपको एक initial, as you rightly said, जब तक आपका SIP book build नहीं होता है आपको trickle दिखेगा नहीं, but everything will take time. Like if you're graduating from KG to first standard to fifth standard, तो आपके जो बक्सा है उसका वेट बढ़ेगा, आपके स्कूल की टाइमिंग बढ़ेंगे, पर उतना समय आपको देना पड़ेगा फॉर अ सस्टेनेबल इनकम टू कम. व्हाट इज दैट So if टाइम anybody फ्रेम? is wanting to make a transition, if they're already into jobs, they can start this as a side, maybe for 1 year, 2 year, build a small SIP book so that they're able to cater to the client, fulfill their requirements, and one fine day they can take a switch full time. स्मॉल SIP book, when we are talking, when you are saying small SIP book, how small is it? मतलब एक्चुअल में क्या मीन करते हैं आप इस वर्ड से? इसमें तो क्या है ना कि अगर कोई कहे कि भाई मेरा तो दाल रोटी खा करके 20 हजार में काम हो जाता है, ओके. तो उसकी स्मॉल SIP बुक स्मॉल होगी.
अगर ओके। कोई कहे कि मैं तो टीयर 1 में रहता हूँ और मेरी नीड इतनी है कि मेरे को कम से कम 2 लाख रुपया चाहिए, तो उसकी एसआईपी बुक का जो कैलकुलेशन होगा वो अलग हो जाएगा. So yes, you'll have to balance out your existing corpus, your emergency funds, your existing support system, and then take a call. But अगर किसी को रिस्पेक्टेबली ग्रो करना है तो 25 करोड़ के ऊपर एयूएम होना चाहिए और करीब करीब 10 से 12 लाख का मंथली एसआईपी बुक होना चाहिए. मंथली एसआईपी बुक 10 to 12 lakhs। ओके। 10 to 12 lakhs. उससे होगा क्या कि आप टेक्निकली एक साल में 1 करोड़ रुपए ऐड कर रहे हो. राइट। 12। मतलब कोई कोई कम करेगा, कोई ज्यादा करेगा, या। बट ब्रॉडली 10 का एक फिगर रखेंगे. तो यू विल हैव टू फाइंड 10 clients who is going to give you say 10,000 रुपीज का एसआईपी. ये हो गया 1 लाख, इन स्टफ लाइक दैट. गेटिंग द पॉइंट सर। जैसे 25 करोड़ का एसेट्स है तो एक मतलब मेरे को एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग है। तो कितना मतलब इनकम रहता है एनुअल, जैसे किसी का पास 25 करोड़ का है, रफली बोलेंगे सी तो? इट डिफर्स फ्रॉम प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट. एक ब्रॉड रेंज एक दे ब्रॉड देंगे। पकड़ लो बिटवीन 0.7 to 1.2. 0.7 to 1.2, कि हाँ, इतना हो जाएगा। हाँ, दैट इज गुड। मतलब किसी में कम होता है, किसी में ज्यादा होता है, बट एवरेजिंग आप देखोगे तो आपको उतना आ जाएगा. एंड ओके। इफ यू आर टेकिंग टू दी आरआईए रूट, उसमें एक सेबी का कैपिंग होता है, यू कैन नॉट चार्ज बियॉन्ड दैट. तो वो राइट। कैपिंग के हिसाब से यू हैव टू बैक कैलकुलेट कि आपको कितना एयूएम क्रिएट करना पड़ेगा इफ यू आर चार्जिंग ऑन द हायर बैंड. सिमिलरली, आई एम जस्ट स्किपिंग वन क्वेश्चन बिकॉज आपने मेरे को दो रास्ते पूछे थे, एक डिस्ट्रीब्यूशन का था, एक आरआईए का है. राइट। If you're a RIA, you can also start building your portfolios and list it on small case. उससे बेनिफिट ये होता है कि ये एग्जीक्यूशन बिकम्स सीमलेस. एंड फिर चाहे स्मॉल केस पे 50 लोग आपके सब्सक्राइबर है, 50,000 है, दैट डजंट मेक अ डिफरेंस टू यू. ओके। तो बिकॉज एवरीथिंग एल्स इज डन. अगर आज प्रिंस ने भी एक स्मॉल केस बना लिया खुद का, एक मोमेंटम पोर्टफोलियो बना लिया, आपने क्या करना है? अगर आप आरआईए हो, आपको हर सैटरडे या एवरी 15 डेज आपके पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करना है. इफ जयेश इज योर क्लाइंट एंड इफ योर नेबर इज योर क्लाइंट एंड इफ योर फ्रेंड इज योर क्लाइंट, every Monday they will receive a notification that your fund manager has made the certain changes to your portfolio. Click here to execute. Then I am dealing with any broker. If I am subscribed to your small case, it will be realigned to the recommendation. As simple as that. राइट। गॉट द पॉइंट सर। मतलब वो इजी इजी वे है, इतना ज्यादा आपको भी नहीं हाँ, करना वो पड़ेगा। easy way. See, I am giving you opportunities के किसको क्या सूट करेगा. See, I do राइट। not know anybody's personal constraints. Correct. राइट। तो सर ने मतलब काफी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। हम जैसे एक एक ब्रॉड आइडिया भी दिया, 25 करोड़ का एयूएम, 10 मतलब 1 करोड़ का एनुअली आप ऐड कर रहे हो। और जो रेंज बताया कमीशन का 0.7 to 1.2% होता है, तो वो अपना बैक कैलकुलेशन करके देख लो मेरा मंथली एक्सपेंस कितना है। और जब तक आपका वो बिल्ड हो जाए उसके बाद आप और अच्छे से फ्लाई कर पाओगे। तो ये एक टैसेड रास्ता है, शांति से जा पाओगे, इतना प्रेशर भी नहीं आएगा, जॉब भी चलती रहेगी और पैसा भी आ जाएगा साइड से। गॉट द पॉइंट सर। सर अभी जैसे अभी आपने मतलब जितना भी आपसे कॉन्वर्सेशन हुआ उतने मुझे ये पता चला है कि आप मतलब आप बहुत पढ़ते हो। तो आप कुछ अच्छे अच्छे से बुक्स बताइए कि मतलब जो कोई बंदा अभी मिड करियर में है, 4-5 साल काम कर चुका है अपने इंडस्ट्री में, अब उसे लीडरशिप की तरफ ट्रांजिशन करना है, तो कैसे, हाउ टू बिकम अ लीडर? क्योंकि एक बंदा जो सिर्फ 5-7 साल से ऑर्डर ही फॉलो कर रहा है लोगों का, तो वो माइंडसेट शिफ्ट भी लगेगा उसे। खाली पोजीशन मिलने से काम नहीं होने वाला। Mindset is the first thing. राइट। मन के जीते जीत, मन के हारे हार. मतलब राइट। if you win here, you win everywhere. यस। ये थोड़ा क्लीशे हो गया, but but actually speaking now, I think earlier I said in one of my discussion that when we start our career, we are small caps, we grow to mid caps, and we grow to large caps, and then mega caps. So if you define leadership as a mid cap, from small cap to mid cap, and if you define leadership at a higher level, large cap, तो आप जब एक ट्रेंड देखोगे, बिकॉज मोस्ट ऑफ योर लर्नर्स आर सीए, सीएफएस एंड फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स, तो दो चीजें होती है. और ये इंसाइट मेरे को एक फंड मैनेजर से मिला था. आपका बॉटम लाइन 4 साल या 5 साल में टॉप लाइन के बराबर होता है कि नहीं होता? ना, व्हाट डज इट मीन? नहीं। आपका बॉटम लाइन टॉप लाइन के बराबर 5 साल में होने का चांसेस है कि नहीं है? मैं उसे करियर से कैसे रिलेट करूं, मैं वो समझने की कोशिश कर रहा हाँ, बताता हूँ. जब आपका कंपनी कैसे, एस कंपनी स्मॉल कैप से लार्ज कैप कब जाएगा? जब उसका मार्केट कैप बढ़ेगा. आर यू हूँ। श्योर? क्लियर. मार्केट कैप इज अ मल्टीपल ऑफ व्हाट? प्राइस.
earnings. What is the earning resultant of revenue? Are we on the same गॉट page? द पॉइंट, कंपनी के पर्सपेक्टिव से तो समझ गया। तो कंपनी अगर कंसिस्टेंटली 20% से ग्रो कर रही है Right. तो एक मार्जिन एक्सपांशन होगा, पी एक्सपांशन होगा। आर वी द सेम पेज? या तो एच डी एफ सी बैंक एक नोन नेम आ रहा है सामने। एशियन पेंट इज वन सच अनदर कंपनी। आई थिंक सौरभ मुखर्जी के बुक में उन्होंने क्रॉनिकल किया है विच आर द कंपनीज विच हैव बीन लाइक गिवन 21% रिटर्न exist consistently for the last 20 odd years. Hardly the 20 odd companies like HDFC Bank and Asian Paints, which have been a constant compounders. So sales growth and P expansion. क्योंकि जब सेल्स ग्रोथ होगा तो इन्वेस्टर्स क्या देखेगा कि ये प्रमोटर जो है काम कर रहा है। आप अपनी कंपनी के प्रमोटर हो, आप स्मॉल कैप से मिड कैप से लार्ज कैप अगर खुद को लेके जाना है तो आपकी सेल्स विच मीन्स योर रेवेन्यू एंड योर पीई, पी कब बढ़ेगा? जब एक लोगों को एक एक्सपेक्टेशन होगा तब उसको आप अच्छी रेटिंग देते हो ना। आज जोमेटो को लोग 1000 का पी क्यों दे रहे हैं, न्याका को 800 का पी क्यों दे रहे हैं? कुछ वो लोग देख रहे हैं ना। सी फॉर एवरी 800 फॉर 1 rupee of earning they are putting in 800 rupees. That's what the function of P is, right? आज जब एक टीसीएस का पी 30s में होगा तो इस वेरिएबल के वो कर सकता है। पर जोमेटो 1000 पी, मे बी देर इज समथिंग दिस वी डोंट नो as a layman, but the larger public knows something, or maybe they are fooled, or maybe whatever, but the business model is different. So from person who wants to go to the leadership position, you have to constantly be aligned to the stock index that you are a part of. आप अगर 200 की कंपनी में हो या 2000 की या 20,000 की, it will define how much is a weightage on you. Where is your hierarchical position? Are you delivering consistently to the company's KPI and OKR? If that's being the case, you will always be on the extreme end of the bell curve. I can't hear you. आप म्यूट पे हो। या सर मतलब अगर आपने जो भी सीए समझाई, मेरा जस्ट ये है कि अगर आप कंपनी की टॉप लाइन में कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हो और वो कंसिस्टेंटली बढ़ा रहे हो तो वो कर सकते हैं। या फिर अगर आप जहाँ पे सर मतलब जैसे ये आप सेल्स और रिसर्च के रोल पे बोल सकते हो बहुत क्लियरली ना, क्योंकि रिसर्च से तो पता चल रहा है पोर्टफोलियो में कितना ग्रोथ आ रहा है आपके स्टॉक से, आपने जो रिकमेंड किए सेल्स में पता चल रहा है आप जितना रेवेन्यू ला रहे हो, तो उनके में बहुत क्लियर है आप रेवेन्यू बढ़ाते जाओ कंपनी आपका पैकेज बढ़ाती जाएगी ना। सिंपल सा गेम है उन दोनों के लिए तो। बट जैसे आप केपीआईज की बात कर रहे हैं तो वो केपीआईज को कैसे डेटा, मतलब मैं बहुत अच्छे जो मैं समझा मैं आपको बता दिया, अभी आप मेरे को और अच्छे से समझाइए एक बार मेरे को। What is KPI? I mean, you know that KPI, right? हाँ जो भी मतलब Now, आपसे एक्सपेक्टेशंस हैं। correct. Key या performance indicators. या अब आप अपने KPI कब कर सकते हो? If you are doing your own job, राइट correct? But if you are working with an organization, तो उसकी KPI से आपका KPI अलाइन होना चाहिए। राइट अगर वो कंपनी कहती है कि भाई आपको अपस्किलिंग करना ही है, and that becomes a marking on your annual review, राइट then you don't have a choice. You have to upskill. फिर चाहे आप CFA में कुछ और करो या कुछ अ, अलग ही कर लो, IFRS कर लो, example. So somewhere along that you have to do a tick mark activity, but if you do it with the alignment of the company, अगर आप IFRS करते हो, can you get into the forensic research? Can you find out companies and talk to the management, understand the capex cycle? I'm just giving a broad example. So how are you making yourself relevant to the कंपनी पर्सपेक्टिव company's पर्सपेक्टिव KPI? See, because company has a vision, right? उनको कहाँ राइट जाना है? They have to answer to the shareholders also. And whatever they say in the investor presentation are nothing but the contribution from the entire organization. And if you notice that this is where I am, this is where I need to fit myself. And I राइट think सबसे ज्यादा important ये होता है कि you have to build a good network cross domain. या I have always been that. From I have switched 4 domains within the engineering project management. ओके Now that doesn't come without any share of learnings. It has to come, but you have to convince the other person if you have a good rapport with them. फिर वो आप क्रॉस कल्चरल में हो या आप किसी एमएनसी के साथ में कर रहे हो, how diverse you are exposed to the entire organization. If you are working with a foreign entity, it could be a head office in Japan or somewhere else. How are you being relevant and making sure that your contributions are
adding up to the company's goals. Yeah, I have got the often point. seen people getting a recommendation that अगर मैंने इसको काम दिया है तो मुझे पता है कि ये काम हो हो जाएगा, जाएगा. हो Now जाएगा। that is something credibility you have to build over a period of time. वो राइट। कभी होगा consistently if you are delivering on your job in a consistent manner. Self learning बोलो, self realization बोलो, then you will find your place. Either you want to be in the comfort zone or you want to be a bit little discomfort में and then grow. या मतलब अगर मैं समराइज करूं जो मुझे समझ में आया सर की बात से, बाकी आपका अपना अलग पर्सपेक्टिव होगा जो भी सुन रहे हो, तो ये है कि यार मतलब अगर आप प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो तो आपको देखना है कि आपके कंट्रीब्यूशन से कंपनी के गोल्स से कंपनी कितना पास पहुंच रही है अपने गोल्स के। अगर आप डिलीवर कर रहे हो टॉप लाइन बॉटम लाइन में तो ही मतलब आपको लगता है कि आप वहां पर पहुंच पाओगे। अदरवाइज तो वो थोड़े से चांसेस आप अपने आप को कुछ भी स्टोरी सुना रहे हो ना। और सर मेरा इनिशियल क्वेश्चन ये था आपसे कि दो तीन अच्छी सी बुक बता दीजिए जो लोगों को कुछ लीडरशिप के बारे में सिखा दें। जैसे आपने कांट हर्ट मी बोला, वो भी मुझे मतलब एज अ गुड बुक लग रही है। तो दो तीन बुक आपने जो पढ़ी हो आपको लगता है कि हाँ दीज बुक्स कैन हेल्प अ पर्सन बिकम अ बेटर लीडर, जैसे साइमन सिनेक की स्टार्ट विद व्हाई है। ये दो तीन बुक मतलब ऐसी आपने जो पढ़े हो। One which I have read, uh, rather I was in a part of a group that is Srimad Bhagavad Gita भगवत गीता। that gives you good hands onto the overall management. And one which I am currently aspiring to complete maybe by end of December is Ramayana by C. Rajagopalachari. ओके। Intermittently, I check on two books by Radhakrishna Pillai on Chanakya. That helps me a bit in the perspective. Nothing I would say has come across directly to me on the leadership front, which I would say, of course, there are authors like Warren Bennis who write on leadership, but those are slightly more towards the western side. पर अगर core management का अगर समझना है, आपके thinking को change करना है, तो most of the books by Peter Drucker, he is considered to be the father of modern management. उनकी किताबें काफी अच्छी होती है and they give you all such alignments. Another book which I mentioned is OKR by John Doerr, Measure What Matters. ओके यार। J. ओके यार। John Doerr, OKR तो एक टॉपिक है, but Measure What Matters is the book's name. John Doerr, Doerr, if I'm not wrong. वो लोग मिल जाएगी. He is a guru for Google के जो founders है. He is a guru for the sort of. I think those are the few books I believe which can help you bring better alignment in whichever setup that you are. Peter Drucker on the management side, and Chanakya is, you know, being agile towards it, being proactive. Ramayana and Bhagavad Gita are treasure troves. I mean, you can literally pick up that and find answers to your questions. राइट सर। Broadly, that, and yeah, I think that गॉट that द would पॉइंट। be crux of it. यस सर, गॉट द पॉइंट। मतलब काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिली इस पॉडकास्ट में। फर्स्ट फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेरा सबसे पहला वो था कि योर सर्टेन एलोकेशन टुवर्ड्स योर स्टडीज। देन आप आपकी एनालॉजी स्मॉल कैप टू मिड कैप टू लार्ज कैप एज अ पर्सन आप कैसे ग्रो करते हो। एंड देन आप स्पॉन्ज एंड सरफेस टू ग्लास का एग्जांपल दिया, वो भी मतलब मेरे लिए जो कैचिंग पॉइंट्स थे लाइक टू फियर्स, दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर लाइक माई की टेक अवेज फ्रॉम दिस सेशन। और मुझे पता है कि मेरे लिए सेशन बहुत इंसाइटफुल था, आप लोग जो देख रहे हो आपके लिए भी ये सेशन बहुत इंसाइटफुल रहा होगा। आई वांट यू टू summarize your key learnings and share below in the comments so that sir and I also can understand what you are learning and are we adding any value to your life. And sir, if you want to give any message to our audience you can give, and then we'll close the podcast. Wealth management, जो मेरा domain है, has a huge opportunity. So if you're a finance professional, first of all, take a stock of things के आप कितने लोगों में हो. The one who's interviewing me, Prince, you are a CFA. आज Yeah. दुनिया में कितने CFA है? You would know that, right? Roughly 3.5 lakhs. Yeah, 2 3 lakhs. If you do the 3.5 lakh divided by 8 billion, you know in what percentage you sit. If you're a CA, do the same mathematical calculation for yourself. Or you are aspiring to be a CFA or a CA or whatever. Any certification is good for you. Nothing is good, nothing is bad. Even if you're an MBA, you are a privileged person. You are much above the remaining people who are not fully aware of the
nuances of finance. And when you are in this minority in terms of your academics, that you are in that position, there is a larger responsibility for us. We are custodians. I would say we are guardians for people who are less privileged. Even if somebody picks up either a distribution model or a RIA model, in whichever way, to impact the lives of people below you. Say, I think somewhere I read in Prince's profile that he wants to impact 100,000 lives. There are people who go with 1 million or whatever that number suits you. If you align that, you would know that where you sit. There is a huge opportunity. Today, India is 5 trillion. We are definitely going to be 10 trillion in the next 5 to 7 years. Simple nominal GDP growth of 15% will take, take us there in the next 5 to 7 years. With that growth, people's disposable income grows. You have to channelize the capital to. So take it as an advantage that you are privileged and you have a larger responsibility to take care of people who are not so privileged. And I believe that could be the best thing that we could offer when we leave back a legacy. ग्रेट सर, मतलब गुड मैसेज फॉर एवरीवन। आप लोग सर के मैसेज को लो और थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करो इस पे। वाकई में मतलब सर ने काफ़ी अच्छी बात की और बहुत वाइज वर्ड्स हैं। एंड थैंक यू सो मच सर, वी गॉट टू लर्न सो मैनी थिंग्स फ्रॉम योर एक्सपीरियंस, फ्रॉम योर लर्निंग। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। थैंक यू। या, यस।